This is question number 7 of NCERT exercise 7.1. Let's start. Let's see what is given in the question. P is the midpoint of AB. P जो है वो AB का midpoint है. That means AP is equal to PB. Angle BAD is equal to angle ABE. That means this angle is equal to this angle. And thirdly, EPA is equal to DPB. That means this angle is equal to this angle. Okay. और हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, DAP is congruent to triangle EPB. Triangle DAP is congruent to triangle EPB. Fine. And AD is equal to BE. AD and BE को हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, हमें पता है बाय CPCT, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. फाइन. तो द मेन थिंग टू बी डन हेयर इज हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सिंपल है, हमें दिख रहा है एक एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल है. एक साइड है, ये इस साइड के इक्वल है. और ये अगेन एक एंगल है जो इस एंगल के इक्वल है. दैट मीन्स हमें क्लियरली दिख रहा है बाय AS से दिस इज कॉन्ग्रुएंट. ओके. लेट्स quickly complete it. In triangle DAP and triangle EBP, fine, angle BAD is equal to angle ABE, that is given. Fine. Angle EPA is equal to angle DPB, this is also given. And the last thing is AP is equal to PB. The reason is P is midpoint of AB. Fine. As simple as that. I don't think कि यहाँ पे कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत है. So triangle DAP is congruent to triangle EBP by which criterion? By ASA criteria. Okay. And by CPCT, let's see, by CPCT AD is equal to BE. AD is equal to BE. This question is completed now. This is question number 8 of exercise 7.1 NCERT. M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. And ACB is 90 degree. DM is equal to CM. And what we need to prove here is AMC is congruent to BMD. AMC, triangle AMC is congruent to triangle BMD. Okay. So what we will write here is, in triangle AMC and triangle BMD, in AMC and BMD, what we know here is MD is equal to MC. सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे. Then second thing, M is the midpoint of AB. That means this side is equal to this side. MB is equal to MA, because M is midpoint of AB. Then what we can do here is, और कुछ हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये देख के समझ में आ रहा है. मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल समझाए थे. These two angles are vertically opposite. Angle DMB is equal to angle AMC, vertically opposite angles. एक बार मैं समझा दूंगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. जैसे एंगल M बन रहा है DM से और MB से, इन्हीं आर्म्स को अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो इस एंगल के हमेशा इक्वल होता है. एंड दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके.
So this angle is equal to this angle, by which rule vertically opposite angles. So when we will check the criteria, this is side, this is angle, this is side, and here side, angle, side. Okay, so angle AMC is congruent to angle BMD by SAS criteria. Fine. After proving this, what we will do here is, by CPCT हम ये कह सकते हैं कि BD is equal to AC. By CPCT BD is equal to AC, and one more thing हम ये कर सकते हैं कि angle BDM means this angle is equal to ACM by CPCT. ओके, ये दोनों चीज़ों को हमने क्यों किया है, इसे हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. फाइन. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, दैट DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री. फाइन. अभी हमने लास्ट पार्ट में क्या बाय CPCT BD इक्वल टू AC किया था, इसको इसके इक्वल किया था. Now if we see it very clearly, what is happening here is these are alternate interior angles. मैंने आपको क्या समझाया था कि alternate interior angles में क्या होता है, एक kind of Z is formed. Okay, we can call it N also, है ना. इस साइड से हम देखें तो N है, इस साइड से देखें तो Z है. So it's fine however we want to understand it. Okay, ये हमने प्रूव कर लिया कि this is equal to this and this is a Z also. अभी तक हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ देर आर टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल इज पासिंग थ्रू देम देन दीज एंगल्स आर इक्वल. दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. व्हाट वी विल डू हियर इज, इसमें क्या है, हमें पता है कि ये एंगल्स इक्वल है, बट हमें ये नहीं पता कि ये लाइंस पैरेलल हैं. तो इसमें हम इसी प्रॉपर्टी का ऑपोजिट यूज करेंगे. दैट मीन्स इफ द एंगल्स इज गिवन टू बी इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे गिवन है कि इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. फाइन. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, एज BD इज इक्वल टू AC, therefore BD is parallel to, angle BDM is equal to angle ACM. Okay, this angle is equal to this angle, that means BD is parallel to AC. और इसका रीज़न क्या है, as alternate interior angles are equal. I again explain it कि हमारा एक alternate interior angles की प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं लास्ट क्लास से. उसमें क्या था कि अगर दो एंगल्स पैरेलल हैं और बीच में से एक ट्रांसवर्सल पास कर रही है तो alternate interior angles इक्वल होते हैं. बट इन दिस केस हमें पता है कि ये एंगल्स गिवन हैं कि ये इक्वल हैं. अगर ये इक्वल हैं तो हमें उल्टी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मीन्स दीज आर द पैरेलल्स एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो हमने क्या प्रूव किया कि BD इज पैरेलल टू AC. नाउ अगर BD AC के इक्वल है तो इसका मतलब अगर BD इज पैरेलल टू AC, इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल DBC प्लस एंगल ACB शुड बी 180 डिग्री. क्यों, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल्स. अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रही है तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. फाइन. AC भी हमें पता है कि 90 डिग्री एंड DBC हम फाइंड कर लेंगे. ओके, आई होप ये इक्वेशन सॉल्व करनी सबको आती होगी बाय नाउ, एज यू आर डूइंग इट फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स. सो 180 माइनस 90 डिग्री, तो DBC कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. Here we complete our second part. Fine. अभी नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड पार्ट के ऊपर, दैट इज DBC दिस ट्रायंगल एंड ACB दिस ट्रायंगल. हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ओके, सो ये कॉमन है, हमें नज़र आ रहा है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, हमें पता चल गया है. वन मोर थिंग, DB और AC को हमने पहले इक्वल प्रूव कर लिया था, तो इट इज़ वेरी सिंपल. राइट. आई होप सभी स्टूडेंट्स अभी ये कर पाएंगे खुद से. दिस इज पार्ट 3.
what we will say here is in triangle DBC and triangle ACB, okay, BD equal to AC, proved, we proved it earlier, fine. Then angle DBC is equal to angle ACB, that is also proved. Okay students, in DBC and ACB what we saw is BD is equal to AC, हमने CPCT से प्रूव किया था. DBC is equal to ACB, ये भी हमने अभी ऊपर प्रूव किया, फाइन. And then the last thing is, which is given, that BC is equal to BC, that is common. In these triangles, this is equal to this and this is common, and these sides we proved by CPCT. This is S, this is A, and this is S again. So the criterion used here is triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसमें हमें प्रूव करना था दैट एम डी इज़ इक्वल टू हाफ ए बी. मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ताकि इजी रहे. तो लेट्स सी, हमने क्या किया, सी डी इज़ इक्वल टू ए बी, ये पिछले पार्ट में हमने प्रूव कर लिया था. ओके, सो हमने लिख लिया सी डी इज़ इक्वल टू ए बी. देन सी डी को हम सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं. सी एम प्लस एम डी इज़ इक्वल टू ए एम प्लस एम बी. ए बी को हमने ए एम प्लस एम बी लिख लिया. नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके, हमें ए बी की ज़रूरत है. ओके, सो सी एम की जगह पे हम एम डी लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी हमने प्रूव किया था दैट सी एम इज़ इक्वल टू एम डी. देन एम डी प्लस एम डी 2 एम डी हो जाएगा, ये 2 उधर जाके हाफ हो गया. सो ये प्रूव हो गया एम डी इज़ इक्वल टू हाफ ए बी. ओके, ये क्वेश्चन सिंपल ही था, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था. आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं. कंप्लीट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था. आप प्लीज़ क्वेश्चन को 3-4 बार देखें, वीडियो को रिवाइज करें एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.